Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. Now students, today we will discuss about your next exercise, that is 11.2, chapter number 11, perimeter and area. So if you want to check your previous exercise 11.1, so you can check your description box also. So let's start from the question number 1, and your question is find the area of each of the following पैलोग्राम. So here you have some पैलोग्राम्स. ओके, आपके यहाँ पे पैलोग्राम्स गिवन हैं, आपको इनका एरिया निकालना है. So first just discuss about the formula of area of पैलोग्राम. So it is base into height. ओके, आपको अगर किसी भी पैलोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है सो आपके पास टू वैल्यूज़ होनी चाहिए. एक तो उसकी बेस की वैल्यू, ओके, कि उसका जो बेस है आप उसके जिस बेस के अलॉन्ग उसे ले रहे हैं वो किसकी लेंथ कितनी है एंड उसकी हाइट कितनी है. ओके, दैट इज़ योर हाइट. क्लियर? सो योर फॉर्मूला इज एरिया ऑफ द पैलोग्राम, दैट इज बेस इनटू हाइट. So in first figure your base is 7 centimeter and height is 4 centimeter. So your area is 7 into 4, that is 28. So for first figure your area is 28 centimeter square. For second figure your base is 5 and height is 3. So 5 3s are 15. So here your area is 15 centimeter square. Now for third question, okay. For third question you have base 2.5 centimeter and height 3.5 centimeter. So base is 2.5 and height is 3.5. So multiply 2.5 with 3.5 and you will get 8.75. So your area is 8.75 centimeter square. Next your base is 5 centimeter. Okay, अब आपका जो बेस है दिस वन ये आपका गिवन नहीं है बट आपको दूसरी साइड गिवन है. सो अब हम यहाँ पे बेस ले लेंगे 5 सेंटीमीटर और इस बेस के अलॉन्ग ही हम हाइट देखेंगे. ओके, ऐसा नहीं करेंगे कि बेस आपने ये ले लिया, ओके, एंड हाइट ये ले ली. क्लियर? या आपने बेस ये ले लिया है और अब आप हाइट ये वाली ले रहे हैं. नो, उस बेस के अलॉन्ग ही आपको हाइट लेनी है. सो हेयर आवर बेस इज़ 5 एंड हाइट इज़ 4.8 सेंटीमीटर. सो योर एरिया इज़ हियर, base is 5, height is 4.8 centimeter. So 4.8 multiplied by 5, that is 24. So area is 24 centimeter square. Next, base is 2 centimeter and height is 4.4 centimeter. So 2 multiplied by 4.4, that is equals to 8.8. So area is 8.8 centimeter square. Now next question, question number 2. Find the area of each of the following triangles. Okay, अब आपके पास ट्राइंगल्स हैं और आपको इनका एरिया फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज़ 1/2 बेस इनटू हाइट. ओके, आपके पास बेस होगा, हाइट होगा, बट आपको उसका हाफ कर देना है. क्लियर? सो दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल, 1/2 बेस इनटू हाइट. So first figure, in first figure your base is 4 and height is 3. Okay, so your formula is 1/2 base into height. So here is your base, that is your height. Okay, 1/2 multiply by 4 multiply by 3. Now 2 2s are 4, okay, and 3 2s are 6. So your area is 6 centimeter square. Next, base is 5 and height is 3.2. So now your area is 1/2 5 into 3.2. Okay, now just divide 3.2 by 2. 2 1s are 2, 2 1s are 2 and 2 6s are 12. So your answer is 1.6. Now multiply 5 by 1.6 and you will get 8. Okay, 8 सेंटीमीटर. जब आप 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5s are 80 और 1 डिजिट के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा. सो योर आंसर इज 8. आपका एरिया हो जाएगा 8 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट ट्राइंगल इज हियर, बेस इज 3 एंड हाइट इज 4. ओके, सो 1/2 4 into 3. ओके, 2 2s are 4 and 3 2s are 6. So your answer is 6 centimeter square. Now you have another triangle. Here your base is 3 centimeter and height is 2 centimeter. Okay, so your area is here 1/2 2 into 3. 2 2 cancel out. So your area is 3 centimeter square. Okay, आपको जो एरिया होगा वो होगा 3 centimeter square.
Now come to the next question, question number 3. Find the missing values. Okay, so previously आपको base and height given थी, आपको area find out करना था, but this time you have base and area, you have to find out height. You have height and area, but you have to find out base. You have height and area, and again you have to find out base, and you have base and area, find out height. So let's start from the first one. And in first question, base is 20 and area of the parallelogram is 246. So area of parallelogram is base into height. Okay, base is 20, height आपको निकालनी है, area है 246. So base की जगह आपका आ जाएगा 20, area की जगह आपका आ जाएगा 246 and height की जगह हम h ही mention करेंगे. So here is your formula. Area is equals to base into height. Okay, so base is 20 एंड एरिया इज़ 246. अब आप 20 को शिफ्ट कर दीजिए, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा. ओके, सो 246 डिवाइडेड बाय 20. 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. ओके, नाउ यू हैव 123 अपॉन 10. नाउ डिवाइडेड बाय 10, सो यू विल गेट 12.3. सो योर आंसर इज़ 12.3 सेंटीमीटर. इट मीन्स योर हाइट इज़, आपको जो पैरेललोग्राम है उसकी हाइट होगी 12.3 सेंटीमीटर. नेक्स्ट यू हैव हाइट एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द बेस. सो सेम आपको यही करना है. ओके, अब आपका बेस मिसिंग है तो वहाँ पे बी मेंशन कर देंगे. सो बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू एरिया. नाउ शिफ्ट 15 हियर, इट बिकम्स 154.5 अपॉन 15. ओके, सो 15 1 ज़ा 15, 0 15, 3 ज़ा 45 एंड आपका 1 डिजिट के बाद डॉट था, सो पुट योर डॉट हियर. सो योर आंसर इज 10.3 सेंटीमीटर. ओके, इट मीन्स द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज 10.3 centimeter. Next, again you have to find out the base and your height is 8.4 and area is 48.72. So area की जगह हम लिख देंगे 48.72, आपकी height की जगह आ जाएगा 8.4 and base की जगह base. अब 8.4 आपकी जो height है मल्टीप्लाई में है, ये आपकी आ जाएगी डिवाइड में. ओके, सो 48.72 डिवाइडेड बाय 8.4. ओके, now just consider that it's not 48.72, it's 4872 and here it's 84. आप अभी डॉट्स को भूल जाइए. क्लियर? सो 2 4 ज़ा 8 and 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12. Again 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16. So now you have 12.18 and 2.1. So 12.18 2.1. Now 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12 and 3 6 ज़ा 18. Okay, अब 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, so mark point here. Okay, now again 7 1 ज़ा 7. Okay, 5 ज़ा 35 and 7 8 ज़ा 56. Okay, जब आप 7 से 406 को डिवाइड करेंगे, सो 7 5 ज़ा 35, ये हो जाएगा 56 एंड 7 8 ज़ा 56. आपका ये जो एक डॉट था ये आ जाएगा यहाँ पे. सो योर आंसर इज़ 5.8 सेंटीमीटर. आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं. ओके, 4872 को डिवाइड कीजिए 84 से और आफ्टर 1 डिजिट आप लगा देंगे डॉट, सो दैट इज़ 5.8 सेंटीमीटर. इट मीन्स योर बेस इज़ 5.8 सेंटीमीटर. Next, you have base 15.6, area 16.38 and just find out height. Okay, so your base is here 15.6 centimeter, area 16.38. Okay, so 15.6 multiplied by height is equal to 16.38. Now shift 15.6 here. Okay, so आपका हो जाएगा 16.38 upon 15.6. Clear? सो अब आप इसको एक रिमूव कर दीजिए डॉट को. सो नाउ यू हैव 16.38 एंड 15.6. ओके, सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट डिवाइड 1638 बाय 156. ओके, एंड उसके बाद आपको डॉट्स पुट करने हैं. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट हियर, आपका जो फर्स्ट डॉट है 2 डिजिट के बाद है एंड यहाँ पे आपका डॉट 1 डिजिट के बाद है. सो आप इसको रिमूव कर दीजिए और आपका जो ऊपर का डॉट है वो आपकी दूसरी डिजिट में शिफ्ट हो जाएगा.
So now you have 16.38 and 15.6. So आप इसको प्रीवियस मेथड से भी कर सकते हैं, क्लियर। आप इसको 1638 अज्यूम कीजिए एंड देन उसको 156 से डिवाइड कीजिए, या आप इसके डॉट्स को रिमूव करके भी कर सकते हैं। रिमूव दिस डॉट, आपका ऊपर 10 आ जाएगा, एंड रिमूव दिस डॉट, आपका नीचे 100 आ जाएगा। ये डॉट आपके डेसिमल पॉइंट आपके 2 डिजिट्स के बाद था तो डिवाइड में 100 आएगा। ये आपका डेसिमल पॉइंट 10 डिजिट्स के 1 डिजिट के बाद था तो आपका ऊपर 10 आएगा, क्लियर। तो आपका जो प्रॉपर फंक्शन है वो हो जाएगा 1638 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 156 मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ 0 कैंसिल आउट, क्लियर। अब आप 1638 को डिवाइड कीजिए 156 से, और फिर जो आंसर आता है उसको देन अगेन 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्लियर। सो योर फाइनल आंसर इज 1.5 सेंटीमीटर, 1.05 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपकी जो हाइट है वो है 1.05 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम दैट इज 1.05 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के सिमिलर है, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पर आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ओके। नाउ योर बेस इज 15, आपको हाइट निकालनी है एंड एरिया आपको गिवन है। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। बेस 15 है, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आपका एरिया है 87 सेंटीमीटर, 1/2 बेस है 15, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। सो 2 यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो 87 के संग ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि दूसरी साइड में वो था डिवाइड में, क्लियर। एंड 15 यहाँ है मल्टीप्लाई में तो यहाँ आ जाएगा ये डिवाइड में। सो आपकी जो फाइनल इक्वेशन है वो होगी h इक्वल्स टू 87 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 15। नाउ सॉल्व इट, ओके। 87 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 7 ज़ा 14, 4 कैरी 1, 2 8 ज़ा 16 एंड 1 17, 174 डिवाइडेड बाय 15, ओके। 15 1 ज़ा 15, इट्स 24, अगेन 15 1 ज़ा 15, okay. Now you have 90, so 0.6, 15 6 ज़ा 90। आप इसको डिवाइड करके देखिए, आपका आंसर होगा 11.6। सो योर हाइट इज़ 11.6 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो ट्रायंगल है उसकी हाइट होगी 11.6 सेंटीमीटर। In next question you have your height that is 31.4, area 1256 and you have to find out your base. सो अगेन आप फॉर्मूले में पुट कीजिए सारी वैल्यूज़ को, ओके। एरिया 1256, हाइट 31.4, ओके, एंड दैट इज़ 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप 2 को शिफ्ट करेंगे, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ओके। दैट इज़ योर 31.4, ये आपका आ जाएगा डिवाइड में, क्लियर। सो योर फाइनल इक्वेशन इज़ 1256 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 31.4, okay. Now remove this decimal point and just mark here 10 and after that solve it, clear. And जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 80 मिलीमीटर, क्लियर। आप इसको सॉल्व कीजिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कीजिए एंड योर आंसर इज 80 मिलीमीटर। सो इट मीन्स योर बेस इज 80 मिलीमीटर। आपका जो बेस है ट्रायंगल का वो है 80 मिलीमीटर। नेक्स्ट वन इज योर बेस इज 22, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, एरिया है 170.5। सो अगेन पुट ऑल द वैल्यूज हियर, ओके। 1/2 बेस इंटू हाइट एंड योर एरिया इज 170.5। आप बेस की जगह 22 रखेंगे, क्लियर। नाउ हियर यू हैव 22 एंड हियर यू हैव 2, ओके। सो 2 आपका चला जाएगा मल्टीप्लाई में एंड 22 डिवाइड में, क्लियर। सो आपका हो जाएगा 170.5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 22। नाउ कैंसिल इट, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, क्लियर। सो आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 11। सो आपके फाइनल जो इक्वेशन होगी 170.5 अपॉन 11। नाउ 11 1 ज़ा 11, अब आपका हो जाएगा 60, 11 5 ज़ा 50, अगेन आपका यहाँ पे 5 बचेगा, 55, 11 5 ज़ा 55 और 1 डिजिट के बाद आपका डॉट है, सो आपका डॉट यहाँ पर पुट हो जाएगा। सो दैट इज़ 15.5, क्लियर। सो इट मीन्स योर आंसर इज़ 15.5 सेंटीमीटर। जो आपका ट्रायंगल है उनकी हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। आपके पास एक पैरेललोग्राम है दैट इज PQRS, ओके। QM इज द हाइट फ्रॉम Q टू SR। आपकी
Q से SR की तरफ जो हाइट है ये है आपकी QM एंड Q से PS की जो हाइट है दैट इज QN. क्लियर? सो हेयर वैल्यूज़ आर ऑलरेडी गिवन. SR इज 12. ओके, जो आपका SR है ये 12 है, QM 7.6 एंड जो QM है ये है 7.6. अब आपको फाइंड आउट करना है PQRS जो आपका पैरेललोग्राम है इसका एरिया एंड देन आपको फाइंड आउट करना है QN दिस वन. आपको ये हाइट फाइंड आउट करनी है अगर PS 8 हो तो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. हमारे पास बेस है, हाइट है, हम इजीली एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर लेंगे. बेस इंटू हाइट, बेस आपका 12 है, हाइट है 7.6 सेंटीमीटर. तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं. एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट. सो दिस टाइम वी विल टेक SR एज बेस एंड QM एज हाइट. सो SR इंटू QM दैट इज 7.6 मल्टीप्लाई बाय 12. अब 7.6 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, योर आंसर विल बी 91.2. इट मीन्स ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज द एरिया ऑफ योर पैरेललोग्राम. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दी हाइट QN. आपको QN निकालना है अगर PS 8 हो तो. क्लियर? सो आपके पास इस पैरेललोग्राम का एरिया है, आपके पास दूसरा बेस है, आप हाइट को इजीली फाइंड आउट कर लीजिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है. क्लियर? सो दिस टाइम योर एरिया इज 91.2. क्लियर? आपकी जो बेस है QN, आपका बेस PS, ओके, जो आपका बेस है ये है 8, आपको फाइंड आउट करनी है हाइट QN. तो बेस को मूव कर दीजिए, बेस आ जाएगा डिवाइड भी, इट बिकम्स 91.2 अपॉन 8 एंड व्हेन यू डिवाइड 91.2 बाय 8 यू विल गेट 11.4. इट मीन्स जो आपका QN है ये है 11.4. इसको एक बार दोबारा से समझ लेते हैं. हाउ वी विल फाइंड आउट दी अनदर हाइट. आपने बेस और हाइट की हेल्प से इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया है पैरेललोग्राम का. क्लियर? अब आपके पास ये बेस है, आपके पास इसका एरिया है, आप हाइट फाइंड आउट कर लीजिए जस्ट लाइक इन क्वेश्चन नंबर 3, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करी है. क्लियर? हमें बेस गिवन था, हमें हाइट गिवन नहीं थी, हमने एरिया की हेल्प से निकाल लिया. ओके, हमें एरिया गिवन है, हमें हाइट गिवन है, हम बेस फाइंड आउट कर रहे हैं. सो सेम आपके पास यहाँ एरिया है, आपके पास एक बेस है, आप हाइट फाइंड आउट कीजिए. सिंपल. ओके, now come to the next question. Question number 6. DL and BM are the height of side AB and AD. So BM and DL ये आपके पैरेललोग्राम की हाइट है. ओके, इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर. अब इसका एरिया ऑलरेडी गिवन है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, AB आपका 35 है, AB 35 सेंटीमीटर है, AD आपका 49 है. ओके, अब आपको ये 5 हाइट्स फाइंड आउट करनी है. सो सिंपल, जैसे हमने अभी किया, बेस हमारे पास है, हमारे पास एरिया है, हम हाइट इजीली फाइंड आउट कर लेंगे. क्लियर? सो फॉर पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट. ओके, तो अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं बेस AB एंड हाइट DL, क्योंकि बेस आपका AB है तो हाइट हम DL ही लेंगे. ओके, सो AB इंटू DL दैट इज़ योर एरिया. क्लियर? और एरिया ऑलरेडी गिवन है 1470. क्लियर? सो एरिया की जगह आ जाएगा 1470, आपके AB की जगह आ जाएगा 35, DL हमें फाइंड आउट करना है. अब AB 35 को भेज दीजिए 1470 के डिवाइड में. क्लियर? नाउ डिवाइड 1470 बाय 35. ओके, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10. ओके, 5 9 ज़ा 45, यहाँ पे 20 हो जाएगा. सो 5 4 ज़ा 20. Now 7 1 is 7, 7 4 is 28 and 7 2 is 14. So your final answer is 42 centimeter. It means जो आपका DL है this one, ये आपका क्या है 42 सेंटीमीटर है. सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में हम बेस लेंगे AD और हाइट फाइंड आउट करेंगे MB. ओके, so here AD into MB or you can say BM also. Now shift 49 here. Okay, so 1070 divided by 49. 7 7s are 49, 7 2s are 14, 7 1s are 17 and 0. Now 7 1s are 7 and 7 3s are 21. So it's 30. It means this time your height is 30 centimeter. Now come to the next question and that is your question number 7. ट्रायंगल ABC इज़ राइट एंगल एट A. जो आपका ट्रायंगल है ये आपका है बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल
AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ओके, एंड जो AD है ये BC पे परपेंडिकुलर है. इट मीन्स जो AD है ये आपके ट्रायंगल की हाइट है. इफ AB इज 5 सेंटीमीटर, AB दैट इज 5 सेंटीमीटर, BC दैट इज 13 सेंटीमीटर and AC is 12 centimeter. Find the area of triangle ABC. Also find the length of AD. So आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है एंड उसके बाद आपको AD की लेंथ भी निकालनी है. क्लियर? So as you know that area of the triangle is 1/2 base into height. So your base is 5 and height is 12. क्योंकि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, so 12 ये आपकी हाइट होगी. So आप वैल्यूज़ को पुट कीजिए. 1/2 बेस दैट इज़ 5 एंड हाइट 12. ओके, 2 6 are 12 and 5 6 are 30. So your area is 30 सेंटीमीटर. अब आपको इसका एरिया मिल चुका है. Now you have to find out the length that is AD. So आपके पास ट्रायंगल का एरिया है 30 सेंटीमीटर, आपके पास बेस है 13. अब आप हाइट फाइंड आउट कर लीजिए. ओके, सो area of the triangle again 1/2 base into height, but this time we will take AD as height and BC as base. Okay, so AD हमें फाइंड आउट करना है. BC आपका है 13 एंड आपका एरिया निकल चुका है दैट इज़ 30. सो इट्स 1/2 AD इंटू 13. ओके, 2 का आप शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाय 13. क्लियर? सो 30 इंटू 2 60, 60 डिवाइडेड बाय 30 इट्स 4.6 सेंटीमीटर. इट मीन्स AD जो है इसकी हाइट है 4.6 सेंटीमीटर. नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. Triangle ABC is isosceles with AB equals to AC equals to 7.5 सेंटीमीटर. आपका ABC जो है ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल है where AB is equals to AC and that is 7.5 सेंटीमीटर. 7.5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ द हाइट AD फ्रॉम A to BC is 6 सेंटीमीटर. जो आपका AD है इसकी हाइट जो है यह है 6 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. अब आप इसके ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कीजिए. व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C to AB. ओके, अब आपकी जो C से AB की हाइट है दैट इज CE. आपको ये फाइंड आउट करनी है. सो पहले आपको निकालना है एरिया एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑल्सो. क्लियर? So as you know that what is the area of a triangle, that is 1/2 base into height. Okay, so here is your base, here is your height. So 9 multiplied by 6 and divided by 2. Okay, so base आपका 9, height है 6. So 1/2 base into height. 2 3s are 6 and 3 9s are 27. So it means the area of this triangle is 27 centimeter square. Now you have to find out CE. अब आपको CE निकालना है. So you can take AB as a base and CE as a height also. AB आप as a base ले लीजिए and CE as a height ले लीजिए. और एरिया आपको तो मिल चुका है that is 27 centimeter square. Okay, so this time we will take AB as base and CE as height. So now our area is 1/2 AB into CE. AB की वैल्यू है आपकी 7.5, CE हमें फाइंड आउट करनी है एंड एरिया ऑलरेडी गिवन है दैट इज 27. सो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 27 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 शिफ्ट हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 7.5. ओके, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे सो आपका आंसर होगा 7.2 सेंटीमीटर. क्लियर? So students, that is your exercise 11.2 chapter number 11 perimeter and area. Okay, and total we have 8 questions in this exercise and all questions are covered in this session. If you have any confusion in any question, just comment me in the comment section and feel free to ask. Okay, so students, that's it for today. I hope this video is helpful to all of you, but if still you have any confusion, so contact to me. Thanks for watching this video. After that, just complete your notebook work, but first try to understand these questions with the help of this video. Okay, so thanks for watching it. Have a nice day. Take care. Bye bye.